Good morning, students. In the previous lecture of the equilibrium, we discussed about some of the basic acid-base theories. First, Arrhenius theory, after that Bronsted-Lowry theory, and after that Lewis acid-base theory. तो इस लेक्चर में हम हमारा चैप्टर आगे बढ़ाएंगे. हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, जो कि आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे. ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे एक्चुअली वो रहेगा आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द वाटर एंड इट्स आयोनिक प्रोडक्ट. चलो, वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट एंड उसका आयोनिक प्रोडक्ट. सबसे पहले ये टॉपिक आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इस टॉपिक से काफी सारे टॉपिक आगे के रिलेट करते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट. सम सब्सटेंस लाइक वाटर आर यूनिक टू देयर एबिलिटी टू एक्ट both as acid and base. Water can act as acid as well as base. That means if we write one reaction where H2O is liquid, one molecule is acting as a acid, whereas another molecule of H2O is going to act as a base. So this one will be basic by nature, and when we draw equilibrium between these two, acid is going to donate a proton, acid is going to donate proton, and base is going to accept the proton. So one H2O will absorb H plus and will make H3O plus, which will be in an aqueous form, whereas acid releases H plus, that makes it OH minus. Simply acid H plus रिलीज करके OH माइनस बनाएगा और बेस जो है H plus एक्सेप्ट करके H3O plus बनाएगा. तो ये हो गया कॉन्जुगेटेड एसिड और ये हो गया कॉन्जुगेटेड बेस. अगर इस रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बनेगा? इट विल बी इक्वल टू concentration of product, so concentration of H3O plus and OH minus divided by concentration of H2O square, right? But as we know, H2O is the pure liquid and the concentration of pure liquid will be constant. So H2O है वो इक्वल टू किस तरफ आ जाएगा? Kc के साथ में. It will make it Kc into H2O square. समझ में आया? क्यों? क्योंकि H2O लिक्विड है और हमें लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन फॉर्मूला में नहीं लेना है, right? So Kc into H2O square will give us ionic constant of water Kw, and it will be equal to only H3O plus, or you can say H plus, and OH minus. Is that clear? So this will be the formula for ionic product of water. H3O plus into OH minus equal to Kw. Look at this. We have seen this in the case of water in section 7.9.2, in the sense Bronsted-Lowry acid-base theory. In the presence of acid Ha, it accepts a proton and act as a base, while in the presence of base B minus, it is going to act as a acid by donating the proton. So in a pure water, one H2O molecule donates the proton
act as a acid, and another water molecule accepts the proton and act as a base at the same time. H2O एसिड के साथ एज ए बेस रिएक्ट करता है एंड बेस के साथ एज ए एसिड रिएक्ट करता है. तो यानी कि एक H2O मॉलिक्यूल प्रोटॉन डोनेट करके एसिड बन जाएगा और एक H2O मॉलिक्यूल प्रोटॉन एक्सेप्ट करके बेस बन जाएगा, जिसके बारे में हमने अभी अभी बात की है. यहाँ रहा इक्वेशन जो भी अभी हमने पढ़ा, राइट. तो अगर इसका हम कांस्टेंट बनाएंगे तो क्या बनेगा, H3O प्लस OH माइनस डिवाइड बाई H2O स्क्वायर. यहाँ पे सिर्फ H2O लिखा है, विच विल बी रॉन्ग, H2O स्क्वायर रहेगा वहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक है, सुधार लेना, ठीक है. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज ओमिटेड, उनको निकाल दिया जाएगा, H2O को यहाँ से निकाल दिया जाएगा. क्यों? क्योंकि वाटर इज अ प्योर लिक्विड एंड कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट. सो H2O इज इनकॉर्पोरेटेड विद इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सो H2O को यहाँ से निकाल के इक्वल टू की इस और लिया जाएगा कांस्टेंट के साथ, and which gives us a new constant Kw, which is called ionic product of water. So Kw का फॉर्मूला क्या बनेगा, H3O plus into OH minus, or you can say H plus into OH minus. Okay. अब 298 केल्विन पे, रिमेंबर द टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन पे H प्लस एंड OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 1 इंटू 10⁻⁷ रहता है. तो Kw का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, चलो. Therefore Kw will be equal to 1 into 10⁻⁷ concentration of H plus, and likewise same concentration of OH minus 10⁻⁷. So 10⁻⁷ into 10⁻⁷, पावर का एडिशन होगा. सो Kw बनेगा 1 into 10⁻⁻14, राइट. एंड यूनिट रहेगा मोलारिटी स्क्वायर, क्योंकि आपने मोलारिटी इंटू मोलारिटी किया. सो ये वैल्यू हुआ Kw का. Remember the value of Kw, 1 into 10⁻⁻20, और टेम्परेचर यहाँ पे कितना रहेगा, 298 केल्विन. ओके, चलो. As dissociation of water produce equal number of H plus and OH minus, तो उन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा 1 into 10⁻⁷ मोलर. तो 298 केल्विन पे Kw का वैल्यू रहेगा 1 into 10⁻⁻14 मोलारिटी स्क्वायर. ओके. अब Kw जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा Kw का वैल्यू भी चेंज होगा. चलो, अब हमें एक सिंपल सा रेगुलेटेड रेशियो लेना होगा, ठीक है. चलो, सबसे पहले डेंसिटी को यूज करके कॉन्सेंट्रेशन कैसे फाइंड करते हैं. सो आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूं जो अभी तक आप नहीं पढ़े हो. मोलारिटी इज इक्वल टू डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलेक्युलर वेट. मोलारिटी का एक नया फॉर्मूला आपके सामने आया है, डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलेक्युलर वेट. डेंसिटी का यूनिट क्या होना चाहिए, ग्राम पर लीटर. डेंसिटी का यूनिट क्या होना चाहिए, ग्राम पर लीटर. चलो, अब वाटर का डेंसिटी रहता है, तो हम पहले इस फॉर्मूला से वाटर का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है. चलो, सो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यानी कि H2O इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, ये हो गया ना सिंबल वाटर का कॉन्सेंट्रेशन का, राइट, विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, इट इज इक्वल टू 1000 ग्राम पर लीटर, will be divided by molecular weight. Molecular weight of water is 18. So 1000 divided by 18, answer will be 55.55 molar. So this is the concentration, maximum concentration of water.
55.55 molar. Okay, now I am going to find out the ratio. किसका रेशियो? आयोनाइज्ड वाटर डिवाइडेड बाय नॉन आयोनाइज्ड वाटर. किसका कॉन्सेंट्रेशन? पहले न्यूमेरेटर में रहेगा आयोनाइज्ड वाटर का कॉन्सेंट्रेशन और नीचे रहेगा नॉन आयोनाइज्ड वाटर का कॉन्सेंट्रेशन. ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं सिंपली एक रेशियो यहाँ पे बताना चाहता हूँ ताकि मुझे एक चीज क्लियर करनी है, वो मैं अच्छे से कर सकूं. चलो, आयोनाइज्ड वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहता है तो आपको पता है 1 × 10⁻⁷ मोलर, राइट. इट इज अ वेरी लेस वैल्यू. और अगर इसको आप वाटर के कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड करोगे 55.55 मोलर. अब देखो यहाँ पे इसका वैल्यू देखो 55.55 और न्यूमेरेटर में है सिंपली 10⁻⁷. न्यूमेरेटर में 10⁻⁷ यानी कि बहुत ही छोटा वैल्यू. और 55.55 इट इज अ वेरी मैक्रो वैल्यू, यानी कि बहुत ही बड़ा वैल्यू है. तो आप यहां से ही कह सकते हो कि जब आप इक्विलिब्रियम की बात करते हो तो अनडिसोशिएटेड वाटर बहुत ही ज्यादा रहेगा और डिसोशिएटेड वाटर बहुत ही कम रहेगा. यानी कि पानी के अंदर आप प्योर वाटर लेते हो तो उसके अंदर H+OH- की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम होगी कंपेयर टू वाटर जो कि अनडिसोशिएटेड है. इसकी वजह से प्योर वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है. आपको पता होगा प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है. चलो इसका आंसर फाइंड करो. 1 डिवाइडेड बाय 55.55 इट विल बी इक्वल टू 0.08 समथिंग, सॉरी 0.018 समथिंग. सो उसको अगर पॉइंट में हम कन्वर्ट करेंगे इट विल बी इक्वल टू 1.9 इंटू 10⁻⁹. ओके, जो कि नियरली कितना होगा 2 × 10⁻⁹. ये वैल्यू जब 1 के अराउंड होती है तब डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड एक जैसा होता है, लेकिन ये तो बहुत ही छोटी वैल्यू है, 1 से बहुत कम है. यानी कि अनडिसोसिएटेड वाटर बहुत ही ज्यादा होगा, डिसोसिएटेड वाटर आयोनाइज्ड वाटर बहुत ही कम होगा. यानी कि इक्विलिब्रियम किस तरफ रहेगा? मोस्टली टुवर्ड्स द अनडिसोसिएटेड. इनिशियल फेज में ही शायद तक इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ जाएगा. देखो द डेंसिटी ऑफ द प्योर वाटर इज, मैंने कहा वैसे 1000 ग्राम पर लीटर है और उसका मोलिकुलर मास है 18 ग्राम पर मोल, राइट. तो अब उसका कॉन्सेंट्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे तो 1000 डिवाइड बाई 18 कितना होगा? 55.55 मोलर. So the ratio of dissociated water to the undissociated water will be equal to 10⁻⁷ divided by 55.55. Answer will be 1.8 into 10⁻⁹, or you can say 2 into 10⁻⁹. So equilibrium lies mainly towards the undissociated water. आपको ये रेशियो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं थी, आप वैल्यूज को डायरेक्टली जस्टिफाई कर सकते थे हमारी पहले वाली फॉर्मूला से. बट हमने KW के फॉर्मूला से वाटर को निकाल दिया, इसकी वजह से हमें रेशियो डिसाइड करना पड़ा. ठीक है, चलो. सो आफ्टर दैट हमारे पास 3 कंक्लूजन निकलते हैं यहां से. अगर H+ का कॉन्सेंट्रेशन OH- से ज्यादा है, यानी कि OH- कम है, H+ ज्यादा है, तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा. अगर दोनों इक्वल है तो न्यूट्रल होगा, और अगर OH- H+ से ज्यादा है तो वो सॉल्यूशन बेसिक होगा. क्लियर? चलो, उसके बाद हमारा टॉपिक है pH स्केल. अब ये pH स्केल है क्या? तो हमारा जो H+ का वैल्यू है 10⁻⁷, H+ या OH- दोनों का जो वैल्यू है
10⁻⁷। तो अगर हम उसमें थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो 1 मोलर से लेके 10⁻⁷ तक हमारे पास, आप सोच सकते हो, 10 लाख से भी ज्यादा अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू बनते हैं। 10 लाख से ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू बनते हैं, शायद तक 1 करोड़ से भी ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ, इतनी सारी वैल्यूज के साथ कोऑपरेट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, उसको आप अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो आपको एक बड़ा स्केल चाहिए होगा, इतने छोटे स्केल पे उसको प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो हमने क्या किया, हमने जो h प्लस का वैल्यू था उसका लोगेरिथम निकाल लिया, यानी कि हमने उसको पावराइज्ड किया। अब हमारे पास सिर्फ 1 से लेके 7 का चेंज रहेगा, 1 से 7 तक का चेंज रहेगा। 1 से 7 तक का अगर आप चेंज करते हो, अगर 1 से 2 पे आते हो 10 गुना चेंज मिलेगा, 2 से 3 पे आते हो 10 गुना चेंज मिलेगा, 3 से 4 तक आते हो वापस से 10 गुना चेंज, यानी कि 1 से 3 पे आओगे तो 100 गुना चेंज मिलेगा कॉन्सेंट्रेशन में। ये हमने पावर के हिसाब से उसको अरेंज किया और इस चीज को कहते हैं पीएच स्केल। ठीक है, कौन से बेसिस पे हमने चेंज किया था? 2 नंबर के बीच में कितना डिफरेंस था? 10 टाइम्स डिफरेंस हुआ ना 2 नंबर के बीच में, राइट? 1 और 2 के बीच में 10 टाइम डिफरेंस किया, यानी कि हमने जो लोगेरिथम निकाला है वो 10 के बेसिस पे निकाला है। अच्छे से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है? अब हम प्रॉपरली लोगेरिथम और एंटी लॉग के अंदर घुसने वाले हैं, प्रॉपर मैथ्स के अंदर घुसेंगे। देखो, hydronium ion concentration in molarity is more conveniently expressed on a logarithm scale known as a pH scale। अब जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है मोलारिटी में, उसको हम मोस्टली लोगेरिथम में एक्सप्लेन करते हैं और उसे हम pH स्केल कहते हैं। अब उसका डेफिनेशन दिया है, देखो, द नेगेटिव लोगेरिथम टू द बेस 10 ऑफ द एक्टिविटी, एक्टिविटी को हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, ऑफ द हाइड्रोजन आयन। चलो तो फॉर्मूला बनाते हैं डेफिनेशन से। नेगेटिव लोगेरिथम यानी कि माइनस लोग, चलो पीएच का फॉर्मूला, पीएच विल बी इक्वल टू नेगेटिव लोगेरिथम टू द बेस 10, यानी कि नेगेटिव लोगेरिथम और उसका बेस 10 है। 10 के बेसिस पे हमने लोग बनाया है, किसका? एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो ये बना हमारा फॉर्मूला pH का, माइनस log 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। ओके, इन डाइल्यूटेड सॉल्यूशन द एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मोलारिटी रिप्रेजेंटेड बाय H प्लस। तो एक्टिविटी और मोलारिटी को एक बता दिया। देखो, अब एक्टिविटी का कोई यूनिट नहीं है, लेकिन अगर आप उसको मोलारिटी के इक्वल बताओगे तो उसका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर, यानी कि फॉर्मूला बनेगा माइनस log H प्लस। ओके, चलो अब हम लोगेरिथम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो, लोग के 3 सिंपल रूल है। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो log अप्लाई करने के बाद मल्टीप्लीकेशन का एडिशन हो जाएगा। अगर आप log अप्लाई करते हो डिवीजन पे तो log अप्लाई करने के बाद डिवीजन हो जाएगा सब्सट्रैक्शन। और अगर आपने किसी भी पावर्ड वैल्यू पे log अप्लाई किया है तो उस चीज का पावर आगे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का एडिशन, डिवीजन का सब्सट्रैक्शन और जो पावर है वो मल्टीप्लीकेशन। ये 3 रूल आपको याद रखने हैं log को समझने से पहले। ओके, multiplication will converted to addition, division converted to subtraction and power will be in the multiplication। ओके, चलो अब हमारे पास एक एसिडिक सॉल्यूशन है जिसका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻²। HCl का सॉल्यूशन दिया है हमें, चलो वो सम सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूला से। हमें HCl का कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है जो कि है 10⁻² मोलर, 10⁻² मोलर।
अब HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और वो 100% आयोनाइज होता है, उसकी वजह से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना बनेगा, 100% आयोनाइज होता है, उसकी वजह से HCl और H प्लस का सेम ही कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। क्यों? क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसकी वजह से। चलो H प्लस मिला हमें, तो अब pH की फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे। सो pH विल बी इक्वल टू माइनस log बेस 10 H प्लस, राइट। आपको अब हर बार बेस 10 लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे ये 10 लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, ठीक है। चलो, सो pH विल बी इक्वल टू माइनस log H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आया, 10⁻⁻²। चलो, मैंने आपको रूल बताया था, पावर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। सो -2 मल्टीप्लाई करेगा नेगेटिव साइन से, सो माइनस माइनस प्लस, यानी कि pH इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, सो 2 इंटू log 10। जब बेस और वैल्यू, बेस भी 10 है और हमें 10 का ही log फाइंड करना है, तो जब बेस और आपका वैल्यू सेम होता है तब log की वैल्यू 1 आती है, तो log 10 की वैल्यू 1 रहेगी। सो 2 इंटू 1, pH कितना मिला हमें, 2। अब आप डायरेक्टली यहां से उसको जस्टिफाई कर सकते हो। 10⁻² का pH 2 आया, तो 10⁻³ H प्लस होगा तो pH 3 होगा, 10⁻⁴ होगा तो pH 4 होगा, 10⁻⁵ पे pH 5, -6 पे 6, -7 पे 7। जितना माइनस में पावर उतना pH इनका होगा, राइट। क्लियर? चलो देखो, the acidic solution of HCl will have pH 2. Similarly, the basic solution of NaOH. चलो अब NaOH की बात करते हैं, जिसका OH माइनस है 10⁻⁴। हमने NaOH का सॉल्यूशन लिया है, देखना ध्यान से यहाँ पे, NaOH का सॉल्यूशन लिया है जिसके अंदर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन दिया है उन्होंने 10⁻⁴। कितना, 10⁻⁴ मोलर। ओके, तो हमारे पास Kw का फॉर्मूला है, हम पढ़े अभी अभी Kw का फॉर्मूला, राइट, ये रहा। तो यहाँ से आपके पास OH माइनस और Kw का वैल्यू है, तो आप यहाँ से H प्लस कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, राइट। देयरफॉर Kw विल बी इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस। आपको किसका वैल्यू चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए H प्लस का वैल्यू, राइट। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस विल बी इक्वल टू Kw डिवाइडेड बाय OH माइनस। ओके, चलो यहाँ पे वैल्यूज लगा दो, 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻4, तो आंसर आएगा H प्लस कितना मिला आपको, 10⁻⁻10 मोलर। अब 10⁻⁻10 हुआ तो जितना नेगेटिव पावर होगा उतना ही pH होगा, हमने अभी अभी उसका फॉर्मूला ऊपर से एक्सप्लेन किया आपको। तो pH कितना आएगा उसका, 10⁻⁻10 की वजह से 10 pH आएगा। समझ में आया? ओके, तो हमने बेस का pH फाइंड किया जो कि 10 मिला हमें। तो हमने यहाँ से 3 चीजें प्रूव की। अगर pH 7 से कम है, pH का वैल्यू 7 से कम हुआ तो वो सॉल्यूशन होगा एसिडिक। अगर pH का वैल्यू एग्जैक्टली 7 आता है तो वो हो जाएगा न्यूट्रल सॉल्यूशन। और अगर pH का वैल्यू 7 से ज्यादा आता है तो वो हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन। ये तो आप 10th में भी पढ़े हो ना, देखो। तो उसका pH आएगा 10⁻H प्लस होगा 10⁻⁻10, pH हो जाएगा 10 NaOH का।
सो एट 25 डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर में H प्लस होता है 10⁻⁻⁷, तो पानी का pH रहेगा 7, ठीक है। यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन कौन होगा, जहां पे H प्लस 10⁻⁷ से ज्यादा है, और बेसिक सॉल्यूशन क्या रहेगा, जहां पे H प्लस 10⁻⁷ से कम हो। तो एसिडिक सॉल्यूशन कब कहा जाएगा, pH 7 से कम होगा तो, बेसिक 7 से ज्यादा pH है तो, और न्यूट्रल 7 pH पे न्यूट्रल। ओके, अब Kw का हमारे पास फॉर्मूला था, राइट। चलो उस फॉर्मूला को मैं लिखता हूं वापस से, Kw इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ओके, चलो अब दोनों तरफ लॉग अप्लाई करो, दोनों तरफ लॉग से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां बनेगा log Kw, और इस तरफ लॉग अप्लाई करने की वजह से मल्टीप्लीकेशन का एडिशन हो जाएगा, जैसा मैंने पहले रूल बताया। तो यहां पे बनेगा log H प्लस log OH माइनस। अब आपको इस इक्वेशन को दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहां पे बनेगा माइनस log Kw माइनस log Kw, और यहाँ पे दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस log H प्लस, चलो ये प्लस का प्लस रखो और पीछे ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है, माइनस log OH माइनस। ओके, चलो माइनस log Kw यानी कि हो गया PKW, राइट। माइनस लोगरिथम टू द बेस 10 लगाते हो तो आगे P लिखना होगा, माइनस log H प्लस हो गया PH, प्लस का प्लस, और ये माइनस log OH माइनस हो गया POH, यानी कि PH प्लस POH हमें मिला PKW, और KW की वैल्यू होती है 10⁻⁻14। KW कितना होता है 10⁻⁻14, तो 10⁻⁻14 का माइनस log निकालोगे तो आंसर आएगा 14। सो उसकी वजह से हमें फॉर्मूला मिला pH प्लस POH इक्वल टू 14, pH प्लस POH इक्वल टू 14। देखो माइनस log लिया दोनों तरफ, तो उससे फॉर्मूला बना pH प्लस POH इक्वल टू 14। ऑल्दो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो Kw का वैल्यू चेंज होगा, लेकिन pH का जो वैल्यू है वो बहुत ही कम चेंज होगा, जिसके वजह से हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। यानी कि pH को हम टेम्परेचर से शायद तक इंडिपेंडेंट कह सकते हैं। सपोज आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, Kw का वैल्यू डबल हो गया, लेकिन उसका इफेक्ट pH पे ज्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आप pH फाइंड आउट करते हो तो आपका pH है, अगर आपने 1 से 2 pH किया तो 10 गुना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, 10 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। अगर आपने 1 से 3 किया, यानी कि 2 नंबर का डिफरेंस लिया, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन 100 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, 100 यानी कि 100 गुना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। यानी कि Kw अगर डबल होता है फिर भी उसका pH पे उतना इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हम तो 10 के बेसिस पे चलते हैं। अगर आपने Kw 10 गुना किया तब जाके pH में 1 नंबर का चेंज होता है सिर्फ। सो Kw में माइनर चेंजेस होने की वजह से pH में तो उससे भी छोटे चेंजेस हो गए, जिसे हम इग्नोर कर सकते हैं। चलो, pKw is a very important quantity for the aqueous solution and controls the relative concentration of H plus and OH minus as their product is constant. ऑलवेज याद रखना pKw 14 ही रहेगा, यानी कि H प्लस OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ऐड करने के बाद ऑलवेज कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻14 ही आता है। ओके, इट शुड बी नोटेड दैट एज pH स्केल इज लॉगरिथमिक,
A change in a pH by just 1 unit also means H plus concentration by factor 10. अगर आपने pH में जस्ट 1 यूनिट का चेंज किया तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 गुना बढ़ेगा या फिर कम होगा। सिमिलरली अगर आपने 2 फैक्टर से चेंज किया तो 100 फैक्टर से चेंज होगा, यानी कि 100 टाइम्स ज्यादा चेंज होगा यहाँ पे। ओके, नाउ यू कैन रियलाइज व्हाई pH विथ टेम्परेचर इज ऑफ्टन इग्नोर। टेम्परेचर में चेंज होने के बावजूद pH में ज्यादा चेंज क्यों नहीं आता है, इसकी वजह से। चलो मेजरमेंट की बात करते हैं। मेजरमेंट ऑफ pH ऑफ सॉल्यूशन इज वेरी एसेंशियल एज इट्स वैल्यू शुड बी नोन व्हेन डीलिंग विद द बायोलॉजिकल एंड कॉस्मेटिक अप्लायंस। अगर हम किसी भी दवाई को बनाते हैं या फिर किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट को बनाते हैं जो कि हम स्किन पे अप्लाई करने वाले हैं, तो इनका कॉन्सेंट्रेशन H प्लस और OH माइनस का इतना बैलेंस रहना चाहिए ताकि वो हमारे बॉडी को सूटेबल रहे। तो उसके लिए हमें उसका pH मेजर करना होगा। अब pH कैसे मेजर कर सकते हैं? pH ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी फाउंड रफली फाइंड आउट करना है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। उसके लिए हम pH पेपर यूज कर सकते हैं जो कि अब 4 अलग अलग शेड में भी अवेलेबल रहते हैं, राइट। वहां पे ये चारों शेड दिए हैं pH पेपर के, ये पहला वाला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 अलग अलग शेड में अवेलेबल है। pH का रेंज रहता है 1 से 14, 1 to 14, ठीक है। और pH पेपर की एक्यूरेसी 0.5 तक वेरी हो सकती है, ऊपर नीचे। अगर आपको एक्यूरेसी के साथ pH मेजर करनी है तो आप pH मीटर को यूज कर सकते हो, जो हमें 0.001 तक का pH प्रिसीजन देता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को यूज करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूज करता है। अभी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन नाम का चैप्टर अभी तक हुआ नहीं है, इसके बाद हम वही स्टार्ट करेंगे। pH मीटर ऑफ अ साइज ऑफ राइटिंग पेन इज नाउ अवेलेबल इन द मार्केट। ये दूसरा वेराइटी है pH मीटर का। ये सारी बात हुई pH कैसे मेजर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम pH के रिलेटेड कुछ एक सम सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।